دوستوں، آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا انجام کیا ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے کیے ہوئے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ محترم عزیز دوستوں، جب یزید ظالم نے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے لگا تو رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیوں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے سن سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستوں، تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ محترم عزیز دوستوں، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری سے یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا۔ لیکن جب اس کو پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر، امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلوایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا،
इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का खून लगा है। क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करे? हरगिज़ नहीं, नवासा रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त। ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूँ। यजीद अब हैरत से अपनी ही औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं, उस समय जब यजीद को ये बीमारी हुई थी तो यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज़ें लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे और उसको ये दर्द किसी भी तरह से महसूस ना हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसे ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वो अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद ज़मीन पर गिरते गिरते ज़मीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफ़ी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यजीद मलऊन का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फ़ौज ने देखा कि यजीद की तो मौत हो चुकी है। उसकी फ़ौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फ़ौज खुद कहने लगी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के कत्ल की यही सज़ा है। दोस्तों, इस तरह से यजीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सज़ा मिली ही और आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यजीद को मुल्के शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, यजीद आज पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। इस ज़मीन पर अगर कोई भी शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे सबक बना देगा कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जुल्म करके कुछ दिन के चैन व सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद मलऊन ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पर जुल्म किया और उस ख़ानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब ख़ानदान था और उन पर ज़्यादती की, तो अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, अगर आप करबला का पूरा वाक़या पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतहा को पार कर दिया था। करबला के मैदान में प्यारे नबी के ख़ानदान पर बहुत जुल्म और ज़्यादती किया। उस जालिम ने अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन उसे आखिर तक हक और सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम हुसैन सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर देते तो वो जालिम और उसकी फ़ौज वहीं खाक में मिल जाती। इमाम हुसैन की शान तो बहुत अजमत और फजीलत वाली है। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की शान बयान करने लगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी शान और मर्तबा को बयान नहीं किया जा सकता। बस एक अल्फाज में कह दूं कि बिना इजाज़त जिब्राइल भी उनके घर आते नहीं थे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शहादत पर दुनिया के लिए एक सबक है कि कभी भी जुल्म के आगे ना झुकना, हमेशा सच और हक के साथ खड़े रहना। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यजीद की मौत कैसे हुई। यजीद की मौत बहुत ही इबरतनाक तरह से हुई।
ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज के इस ज़माने में यजीद की कब्र को कोई नहीं जानता, ना ही उस मलऊन के बारे में कोई बात नहीं करता है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का चर्चा हर घर में है, हर मोहल्ले में है और पूरी कायनात में है। और इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक पर जाने के लिए करोड़ों अरबों लोग तरसते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला की जंग का अंजाम तो देखिए, करबला की जंग का अंजाम तो देखिए। बेघर यजीद हो गया और घर घर हुसैन हैं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगर हमारे बोलने या पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदक़े में माफ़ करे। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम, बुरे आमाल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे इस हिंदी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अच्छी बातें सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है और इसका अज्र मिलता है। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये जानकारी और भी तमाम मुसलमान भाई बहनों तक पहुंच सके।